ভারতের অন্যতম বৃহৎ স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি মণিপাল হাসপাতাল স্ট্রোক সচেতনতা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আরও ভালোভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে স্ট্রোক স্মার্ট কলকাতা প্রচার শুরু করে একাধিক প্রচেষ্টাকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বিশ্ব স্ট্রোক দিবস, যা প্রতি বছর 29শে অক্টোবর বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হয়। মণিপাল হাসপাতাল ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং পাশাপাশি শহর জুড়ে স্ট্রোক সচেতনতার যথাযথ অনুশীলনের বিষয়ে সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করতে এবং এটিকে স্ট্রোক স্মার্ট শহরে পরিণত করার জন্য জীবন রক্ষাকারী দক্ষতার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়িত করার জন্য প্রচার কর্মসূচি শুরু করেছে। বি স্ট্রোক স্মার্ট প্রচারাভিযানের মাধ্যমে মণিপাল হাসপাতাল পূর্ব ভারতে স্ট্রোক প্রস্তুত আবহ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের প্রাথমিক লক্ষণগুলি শনাক্ত করতে এবং দেরি না করে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরি করতে তারা সদা সচেষ্ট। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মণিপাল হাসপাতালের নিউরোসার্জন ডাক্তার দীপেন্দ্র কুমার প্রধান বলেন, জীবনযাত্রার কারণ, চাপ এবং অলক্ষিত সতর্কতার লক্ষণগুলির কারণে তরুণদের মধ্যে স্ট্রোকের ঘটনা বাড়ছে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আজকাল প্রায় 10 থেকে 15% স্ট্রোক 18 থেকে 50 বছর বয়সী মানুষের মধ্যে ঘটে। আমরা বর্ধমান তথা আশেপাশে এরকম বহু পেশেন্টকে পরিষেবা দিতে পেরেছি। এই উদ্যোগটির মাধ্যমে আমরা কলকাতায় স্ট্রোকের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য এবং ওষুধের পরিবর্তে প্রতিরোধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই, যেহেতু এই ধরনের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সচেতনতা শহরবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে স্ট্রোকের ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব হয়। মুকুন্দপুরের মণিপাল হাসপাতালের নিউরোসার্জন ডাক্তার দীপেন্দ্র কুমার প্রধান আরও বলেন, স্ট্রোক সচেতনতা হলো প্রাথমিক চিকিৎসার উপায় এবং সমস্ত রোগীই জানেন না যে প্রথম ঘন্টাটি কত গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ মানুষকে নিরাপদে নির্ণয় এবং স্ট্রোকের জন্য চিকিৎসা করা মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। বি স্ট্রোক স্মার্ট প্রচারাভিযানটি রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে স্ট্রোকের লক্ষণগুলি তার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করার বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচি। এই মুহূর্তে স্ট্রোকে মৃত্যুর ঘটনা 1990 থেকে 2019 সালের মধ্যে 43% বেড়েছে। যেহেতু স্ট্রোক জনসংখ্যার একটি উচ্চ শতাংশকে প্রভাবিত করে, বিশেষত 25 থেকে 50 বছর বয়সীদের মধ্যে। বি স্ট্রোক স্মার্ট প্রচারাভিযানটি জনসাধারণের শিক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধ ও পরিচালনার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এ বিষয়ে ডাক্তার দীপেন্দ্র কুমার প্রধান আরও কি বলেন আমরা শুনে নেব। মণিমোহন গোস্বামী রিপোর্ট, চয়ন বার্তা নিউজ। প্রথমে তো অন বিহাফ অফ মণিপাল মুকুন্দপুর আপনাদের প্রত্যেককেই অজস্র ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ বিকজ ইউ আর অলওয়েজ অল টাইম অ্যান্ড আজকেও আপনারা অন টাইম। আজ আমরা এখানে কেন, এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে 29th of October we celebrate as a ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডে। সেতে আমাদের মণিপাল মুকুন্দপুর ইউনিটের থেকে আমরা যে ব্যাপারে আজ এখানে এক হয়েছে, আমাদের মাঝে রয়েছেন ডক্টর দীপেন্দ্র প্রধান, যে এই যে প্রেজেন্ট টাইমের মধ্যে একটা নিউরো ডিজিজের একটা চরম আমরা স্পাইক বা সার্চ লক্ষ্য করি। আগে যেরকম ধরনের লোক নিউরো ডিজিজ নিয়ে আসতো সেই তুলনায় এখন অনেক বেশি আসছে। তারা কেন আসছে এবং এই স্ট্রোক, আজকে স্ট্রোক একটা খুব মারাত্মক বড় ইম্পর্টেন্ট রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্ডিয়াকের পরে নাম্বার অফ নিউরো পেশেন্ট সব থেকে হাইয়েস্ট আমাদের ভারতবর্ষে। কেন স্ট্রোক হলে আমরা এক্স্যাক্টলি কি করব, আমরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারি না হয়তো স্ট্রোক হয়েছে কিনা। আমরা সবাই কি করে বুঝবো যে স্ট্রোক কিভাবে, স্ট্রোকের সিমটমস এবং তার ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় উচিত। স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট নিয়ে আমরা যে কাজ করছি সেক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা কি করতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা আজকে এখানে প্রেজেন্ট। মোরালেস সব থেকে আগে আমি একটা জিনিসকে হাইলাইট করব, যে কোনো কারণ, হোয়াট এভার দ্য রিজন, যে কোনো কারণের জন্য বর্ধমান থেকে আমরা অনেক নিউরো পেশেন্ট পাই, স্ট্রোক তার মধ্যে একরকম। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে এই পেশেন্টটাকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে এবং তাদের আমরা চিকিৎসা করছি। বর্ধমানের লোকেদের আমাদের প্রতি একটা খুব ভালো আস্থা এখন অব্দি আছে, আমরা সেটা রাখতে পেরেছি। বর্ধমান পার্টিকুলারলি এই কারণে বললাম কারণ আমরা যে পেশেন্টের যে ডেটা পাই প্রত্যেক হসপিটালের ক্ষেত্রে দেখি বর্ধমানের একটা পেশেন্টের
নিউরো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে অবজার্ভ করেছি। তো আপনাদের প্রথম কোয়েশ্চেন স্যারের কাছে থাকে, প্লিজ আপনারা করতে পারেন রিগার্ডিং स्ट्रोक। मेरा परिचय है कि मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार प्रधान, आई एम ए न्यूरोसर्जन। बेसिकली आई एम फ्रॉम सिक्किम बट सेटल्ड इन बंगाल फॉर द लास्ट 15 years। और मेरा एजुकेशन हुआ कालिम्पोंग में। आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल फॉर द लास्ट नर्सरी टू 12। Thereafter I did my MCH neurosurgery in the Institute of National Importance that's called Sri Chitra Institute, that's in Trivandrum। एंड उसके बाद मैं कैलकट में अभी लास्ट 15 years से काम कर रहा हूँ। देखिए ये मणिपाल से हम लोग जुड़े हुए लास्ट 6 months हो गए। इससे पहले हम लोग आमरी में काम कर रहे थे और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस कैलकटा में मैं लास्ट 10 years से काम कर रहा था। देखिए अब न्यूरो साइंस का एक ओवरव्यू पहले देना चाहता हूँ। वन इज द स्ट्रोक, व्हाट वी ऑल नो। स्ट्रोक कैन बी ऑफ 2 types। वन इज द हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, साथ में वो उसका प्रेजेंटेशन एक ही भी हो सकता है, अलग टाइप का हो सकता है। दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रोक नंबर 2 इज इस्चेमिक स्ट्रोक, जहां पे ब्लड वेसल्स जो ब्लड सीरा सप्लाई करता है ब्रेन को वो ब्लॉक हो जाता है। बड़ा आर्टरी ब्लॉक हो सकता है या छोटा आर्टरी ब्लॉक होता है। अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकेज द टेरिटरी वो प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। देखिए सोसाइटी में जो हम जानते हैं कि स्ट्रोक में गोल्डन आवर होता है। स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के लिए एक समय सीमित होता है जिसके अंदर हम लोग यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका मॉर्बिडिटी माने उसका जो नुकसान कम हो जाता है या तो मॉर्टेलिटी उसका डेथ कम हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक का गोल्डन पीरियड इज 60 minutes 1 hour। if a person comes within 60 minutes or 1 hour, the chances of recovery is very very high। the patient can go back to its normal activities, almost normal activities। But this golden period has been extended up to 4 to 4.5 hours। तो कोई भी लक्षण मिले स्ट्रोक का और आप 4.5 hours के अंदर में आएंगे, हो सकता है एक सिंपल इंजेक्शन से हम ट्रीट कर सकते हैं। और यदि आप स्पेशलिस्ट स्ट्रोक सेंटर में जाएंगे तो साथ में इंजेक्शन के साथ हम लोग अपने लैब में ले जाएंगे, वहां पे जाके हम लोग क्लॉट निकाल सकते हैं या तो जो ब्लॉकेज है वो निकाल सकते हैं विथ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। सो स्ट्रोक इज नॉट सो सिंपल, इट्स नॉट ओनली इंजेक्शन, इट्स amalgamation। It needs a teamwork। मैं अकेले आया हूँ, it's very injustice to the whole department of stroke। I'm a neurosurgeon, but there is a specialized जो stroke team का एक लीडर रहता है जो आज आने वाला था, डॉक्टर अप्रतिम चैटर्जी नहीं आ पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए। He is a leader in Manipal group of hospitals in Calcutta। तो एक टीम में एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है who is specially trained in stroke with who does the intervention, जो कैथेटर डाल के हम लोग क्लॉट को निकाल सकते हैं। साथ में न्यूरोसर्जन जहां पे ब्रेन के अंदर हम लोग ऑपरेशन करना पड़ सकता है एज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अब देखिए, हाँ प्लीज कंटिन्यू सर। अब देखिए व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रोक। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी कन्वेड टू द कम्युनिटी एट लार्ज। द साइंस ऑफ आजकल जो एक एक्रोनिम बना हुआ है दैट्स कॉल्ड बी फास्ट, BEFAST। बी इज बैलेंस। एक कोई भी मरीज सडनली लूजेस हिज बैलेंस, चलने में दिक्कत हो रही है, दैट्स कॉल्ड बैलेंस। इम्बैलेंस हो रहा है, दैट मींस कुछ गड़बड़ है, या तो ब्रेन में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है। सो इट्स द बेस्ट जज विल बी द डॉक्टर। यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। आप सबसे नजदीक अस्पताल में जाइए, स्पेशली देयर इज अ न्यूरो ट्रेन्ड डॉक्टर और न्यूरो डिपार्टमेंट। सेकेंड इज आई साइंस। सडनली अचानक किसी को दिखना कम हो गए, धुंधलापन हो गए, या एक आंख से दिखना बंद हो गए, या तो डबल विजन दिख रहा है, तो वो रेड हियरिंग साइन है, उसमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। BEF फास्ट, फेस, F मतलब फेस। यदि मुंह का टेढ़ापन, बोलते बोलते टेढ़ापन आने लग गए, या तो देयर इज ड्रूपिंग ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब बात होने लग गए, दैट मींस कुछ गड़बड़ है, ब्रेन में कुछ स्ट्रोक हो रहा है। दैट्स फेस, फेशियल एसिमेट्री और ड्रूपिंग। A is BEFA, A is आर्म। किसी को चलते चलते या अचानक हाथ उठाने में तकलीफ हो रहा है, जो हाथ ऐसे उठा पा रहे हैं तो सडनली बहुत भारीपन हो रहा है, दैट मींस वो पैरालिसिस का लक्षण है, इनिशियल लक्षण। तो A मतलब आर्म, S मतलब स्पीच, है ना। एसिमेट्री भी होगा, एसिमेट्री बोलना भी कम हो जाए, मतलब दिक्कत हो सकती है, या तो फेस ड्रूपिंग हो सकता है। तो ऐसे स्पीच में जैसे मैंने समझाया। और T इज द टाइम,
टाइम व्हाट आई मेंशन्ड इज द गोल्डन पीरियड। हो सके तो 60 मिनट्स में 1 घंटे के अंदर जाना है, या तो 4.5 आवर्स के अंदर जाना ही है, यदि आपको न्यूरॉन्स को बचाना है। एक स्ट्रोक में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स नुकसान हो सकता है। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द टेरिटरी। सब स्ट्रोक एक समान नहीं होता, सब स्ट्रोक होपलेस नहीं होता है। So my advice to the community at large through your medium is please identify the signs of stroke early. Go to the nearest medical center, preferably a neuro center, जहाँ पे सब फैसिलिटी हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी ट्रीटमेंट हायर सेंटर्स में रेफर हो सकता है, बट प्लीज गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। कंसंट्रेट करेंगे, बट न्यूरोसाइंस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। एक तो स्ट्रोक हुआ, अनदर इज न्यूरो ऑन्कोलॉजी हुआ, एपिलेप्सी हुआ, मूवमेंट डिसऑर्डर हुआ जिसमें चलने में दिक्कत हो रही है, और लास्ट इज द न्यूरोस्पाइन सब स्पेशलिटी। सो न्यूरोसाइंस इज वेरी लार्ज। टुडे विल टॉक ओनली अबाउट स्ट्रोक। सर द पॉइंट इज दैट वेल वी आर सीइंग के अभी ये स्ट्रोक का एज ग्रुप क्या है, बिकॉज आपके क्लिनिक में काफी सारे पेशेंट रहते हैं विच इज यंग, समवन इज ओल्ड, व्हाई द यंगर्स गेटिंग अफेक्टेड? देखिए, पहले का धारणा यह था कि स्ट्रोक सिर्फ ओल्ड एज में होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लॉकेज होता है, या तो ब्लड प्रेशर हाई कारण से स्ट्रोक होता है, ब्लीडिंग होता है। अभी ऐसा नहीं है। देयर इज अ बिग एंटाइटी कॉल्ड यंग ऑनसेट स्ट्रोक, जो टीनेज से लेके राइट अप टू 50 इयर्स ये स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जो हिसाब से हम लोग अपने जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वी आर एक्सपोज टू अल्कोहल एज वेल एज other substances which of abuse. So it's very common, but always remember, stroke starts with genes, genetic. All patients, all people who are smoking in the society do not have stroke. There must be a genetic predisposition. तो जीन्स किसी का कमजोर हो जाता है किसी कारण से, या अपने बनावटी ब्लड वेसल्स का अलग ही रहता है, और साथ ही में जब एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, और साथ में हम लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, इसलिए बहुत कॉमन हो जाता है। एज वी सी, आजकल बहुत ही कॉमन सडन डेथ हो रहा है इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 50 years. दिस कॉल्ड यंग ऑनसेट स्ट्रोक। इसीलिए इसको बचाने के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Say after age of 35 years, a yearly checkup of all the blood parameters as well as the vitals, very important, by a physician. And जिसके घर में स्ट्रोक का हिस्ट्री है, उनमें तो और सतर्क होना चाहिए, और जैसे हमने बताया कि अपने फिजिशियन के संपर्क में हमेशा ईयरली ट्रीटमेंट करना चाहिए। मानिए कि एक हम लोग का परिचित नहीं है और वो अचानक हमारे सामने कोई स्ट्रोक मरीज हो गया है, तो तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको नजदीक अस्पताल में लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। मानिए कि वो नजदीक नहीं है, तब क्या करना है? ये फॉर्चुनेटली इंडिया हम लोग को आजकल हर हाईवे से लेके हर गली में हॉस्पिटल बना हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस आर ट्रेन्ड फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट एज जिसमें हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोलाइसिस, इंट्रावेनस। जैसे हम लोग सलाइन लगाते हैं, वहीं पे इसी लाइन से इंजेक्शन लगा सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। और साथ में थ्रोम्बोलाइसिस के साथ साथ में यदि उन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है, तो उसी इंजेक्शन के साथ हम लोग एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं न्यूरो सेंटर में। दैट इज द प्रोटोकॉल। तो हमारे पास टाइम आएगा फिर? हाँ, टाइम मिलेगा, तो टाइम मिलेगा। यू कैन बाई टाइम, यू कैन एक्सटेंड द गोल्डन पीरियड। ড্যামেজটা কারেক্ট আপনি कंट्रोल করার জন্য টাইম পেতে পারেন। सर पॉइंट इज कमिंग दिस साइड ऑफ द टेबल एंड दिस साइड ऑफ द टेबल, एक चीज हम सब में कॉमन है, दैट इज स्ट्रेस। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रोक? स्ट्रेस का क्या रोल है? अगेन मैंने जैसे बोला, एक कारण नहीं हो सकता। स्ट्रोक विद मेनी अदर फैक्टर्स, स्ट्रेस इज डेफिनेटली वन बिग पॉजिटिव फैक्टर। वी आर मोस्ट ऑफ द आजकल स्ट्रेस के साथ डिप्रेशन हो जाता है सोसाइटी में। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, साथ में भी उस स्ट्रेस को, डिप्रेशन कम करने के लिए भी कंज्यूम अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्मफुल टू द बॉडी। दिस ऑल एड अप टू द स्ट्रोक। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, योगा, which is promoted by the Prime Minister of India, it's very important actually. ये इसको हम लोग environmental modification बोलते हैं, so that we create a favorable environment for healthy mental health. तो माना जाता है कि मतलब से कहा जाता है कि अगर स्ट्रोक हो और खून निकल जाए,
कंसंट्रेट करेंगे, बट न्यूरोसाइंस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। एक तो स्ट्रोक हुआ, नदर इज न्यूरो ऑन्कोलॉजी हुआ, एपिलेप्सी हुआ, मूवमेंट डिसऑर्डर हुआ जिसमें चलने में दिक्कत हो रही है, और लास्ट इज द न्यूरोस्पाइन सब स्पेशलिटी। सो न्यूरोसाइंस इज वेरी लार्ज। टुडे विल टॉक ओनली अबाउट स्ट्रोक। सर द पॉइंट इज दैट वेल वी आर सेइंग के अभी ये स्ट्रोक का एज ग्रुप क्या है, बिकॉज आपके क्लिनिक में काफी सारे पेशेंट रहते हैं विच इज यंग, समवन इज ओल्ड, व्हाई द यंगर्स गेटिंग अफेक्टेड? देखिए, पहले का धारणा यह था कि स्ट्रोक सिर्फ ओल्ड एज में होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लॉकेज होता है, या तो ब्लड प्रेशर हाई कारण से स्ट्रोक होता है, ब्लीडिंग होता है। अभी ऐसा नहीं है। देयर इज अ बिग एंटाइटी कॉल्ड यंग अनसेट स्ट्रोक, जो टीनेज से लेके राइट अप टू 50 इयर्स ये स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जो हिसाब से हम लोग अपने जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वी आर एक्सपोज टू एल्कोहल एज वेल एज other substances which of abuse. So it's very common. But always remember, stroke starts with genes, genetic. All patients, all people who are smoking in the society do not have stroke. There must be a genetic predisposition. तो जीन्स किसी का कमजोर हो जाता है किसी कारण से, या अपने बनावटी ब्लड वेसल्स का अलग ही रहता है, और साथ ही में जब एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, और साथ में हम लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, इसलिए बहुत कॉमन हो जाता है। एज वी सी, आजकल बहुत ही कॉमन सडन डेथ हो रहा है इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 50 इयर्स। दिस कॉल्ड यंग ऑनसेट स्ट्रोक। इसीलिए इसको बचाने के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Say after age of 35 years, yearly checkup of all the blood parameters as well as the vitals very important by a physician. And जिसके घर में स्ट्रोक का हिस्ट्री है, उनमें तो और सतर्क होना चाहिए, और जैसे हमने बताया कि अपने फिजिशियन के संपर्क में हमेशा ईयरली ट्रीटमेंट करना चाहिए। मानिए कि एक कोई हम लोग का परिचित नहीं है और वो अचानक हमारे सामने कोई स्ट्रोक मरीज हो गया है, तो तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको नजदीक अस्पताल में लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। मानिए कि वो नजदीक नहीं है, तब क्या करना है? ये फॉर्चुनेटली इंडिया हम लोग को आजकल हर हाईवे से लेके हर गली में हॉस्पिटल बना हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस आर ट्रेन्ड फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट एज जिसमें हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोलाइसिस। इंट्रावेनस जैसे हम लोग सलाइन लगाते हैं, वहीं पे इसी लाइन से इंजेक्शन लगा सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। और साथ में थ्रोम्बोलाइसिस के साथ साथ में यदि उन लोगों का फैसिलिटी नहीं है तो उसी इंजेक्शन के साथ हम लोग एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं न्यूरो सेंटर में। दैट इज द प्रोटोकॉल। तो हमारे पास टाइम आएगा फिर? हाँ, टाइम मिलेगा। तो टाइम मिलेगा। यू कैन बाई टाइम, यू कैन एक्सटेंड द गोल्डन पीरियड। ড্যামেজটা কারেক্ট আপনি कंट्रोल করার জন্য টাইম পেতে পারেন। सर पॉइंट इज कमिंग दिस साइड ऑफ द टेबल एंड दिस साइड ऑफ द टेबल, एक चीज हम सब में कॉमन है, दैट इज स्ट्रेस। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रोक? स्ट्रेस का क्या रोल है सर? अगेन मैंने जैसे बोला कि एक कारण नहीं हो सकता। स्ट्रोक विद मेनी अदर फैक्टर्स, स्ट्रेस इज डेफिनेटली वन बिग पॉजिटिव फैक्टर। वी आर मोस्ट ऑफ द आजकल स्ट्रेस के साथ डिप्रेशन हो जाता है सोसाइटी में। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, साथ में भी उस स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करने के लिए भी कंज्यूम अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्मफुल टू द बॉडी। दिस ऑल एड अप टू द स्ट्रोक। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, योगा, which is promoted by the Prime Minister of India, it's very important actually. ये इसको हम लोग environmental modification बोलते हैं, so that we create a favorable environment for healthy mental health. तो माना जाता है कि मतलब ये पहले से कहा जाता है कि अगर स्ट्रोक हो और खून निकल जाए मुमकिन है, तो ये तो अगर तुरंत देखा जाए कि ये भी जानते हैं हम लोग कि अगर किसी मरीज को स्ट्रोक हो गया और आपको पता है, तो किसी भी काट देखिए, मतलब सुई से खून निकाल। देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक माने सिर्फ इंजेक्शन से ठीक करना नहीं है। स्ट्रोक जैसे मैंने बोला कि एक तो ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक, एक ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक। आप जिस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ रास्ते में, आप ये की भिन्नता नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ या ब्लॉकेज हुआ, ओके, ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक हुआ। इसलिए सबसे पहले सीटी स्कैन तुरंत किया जाता है। जैसे पेशेंट आता है, विद इन 1 मिनट एग्जामिन करते हैं और हम लोग सीटी स्कैन के लिए लेके जाते हैं, और सीटी स्कैन में भिन्नता करते हैं कि ये स्ट्रोक वाला, ब्लीडिंग वाला है या ब्लॉकेज वाला। ब्लॉकेज वाला है तो तुरंत हम लोग इंजेक्शन, जैसे मैंने बोला, आईवी थ्रोम्बोलाइसिस देना शुरू कर देंगे। ब्लीडिंग वाला है तो सीधे हम लोग बीपी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। बीपी हाई, क्योंकि
रिफ्लेक्सली बीपी हाई हो जाता है और ब्लीडिंग होते रहता है। ब्लीडिंग छोटा है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको एंटी इरिमा मेजर्स बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक मेजर्स, जिसमें मिर्गी ना हो उसके लिए मेडिसिन देना शुरू करेंगे। अब ब्रेन का प्रेशर कम करने के मेडिसिन शुरू करना पड़ेगा। और यदि ब्रेन में बहुत ही प्रेशर है, लाइफ को डेंजर है, तो तुरंत ऑपरेशन करना। ये हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ। इसमें आजकल इतना हम लोग का एडवांसेस है कि जो ब्लीडिंग हुआ है उसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजिव एकदम माइक्रो सर्जरी या तो एंडोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, एंड दीज आर लाइफ सेविंग। और अब ये ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक में जैसे मैंने बोला, प्रोटोकॉल इज यू स्टार्ट विद द इंजेक्शन, सिटी स्कैन करिए, इंजेक्शन स्टार्ट करिए, अपने पास फैसिलिटी है तो वहीं पे रखिए, सीधा कैथ लैब में ले जाके क्लॉट को निकालिए वहां से, तो जो ब्रेन को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको रेफर करना ही पड़ेगा। ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई नहीं होता है उसका। स्ट्रोक से ब्लड प्रेशर हाई से नहीं होता, जेनेटिक में प्रीडिस्पोजिशन विद अदर डायबिटीज विद अदर वैस्कुलर एनोमैलीज बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स का इनहेरेंटली बीमारी रहते हैं, उनमें भी ब्लड स्ट्रोक हो सकता है। सर आप स्ट्रोक को छोड़ के भी, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रोक थिंग, यू सी लॉट ऑफ पेशेंट इन स्पाइन, आप काफी सारे स्पाइन के देखते हैं, यू डू दो स्पाइन सर्जरीज, व्हाई सो मच पेशेंट इन नाउ स्पाइन सर्जरीज रिक्वायर्ड? इतने लोगों को स्पाइन सर्जरी का जरूरत क्यों पड़ रहा है अभी? देखिए, स्पाइन तो ऐसा है कि सभी की इस रूम में सभी को कुछ ना कुछ स्पाइन का प्रॉब्लम तो स्पॉन्डिलाइसिस होता ही है। एग्जैक्टली। अगेन टू प्रिवेंट ऑल दिस, सबसे पहले तो हम लोग को वी हैव टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी प्रिवेंट करना पड़ेगा, और वी शुड बी वेरी एक्टिव विद द एक्सरसाइजेस। वी शुड गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स पर डे अपने शरीर की एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? सभी ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक्सरसाइज का मतलब मोटापन कम करना नहीं है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक तो स्केलेटन होता है ना, स्पाइन होता है, उसको सपोर्ट करने वाला मसल्स ही रहता है। मसल्स यदि वीक हो गए या तो उसमें फैट जम गए, एक्सरसाइज नहीं करने से मसल्स के अंदर फैट जम जाता है, इसलिए कमजोर होना शुरू होता है। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज ही है। अब देखिए, हम लोग का अभी का प्रैक्टिस में, न्यूरो साइंस के प्रैक्टिस में, अराउंड 50% ऑफ द सर्जरीज आर ऑफ द स्पाइन। इतना कॉमन है। और स्पाइन का प्रॉब्लम छोटा हो सकता है, जैसे माइल्ड स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, या तो बड़ा हो सकता है जिसमें पैरालिसिस का लक्षण होता है। तो अगेन इट्स बेस्ट टू गो टू अ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, टू आइडेंटिफाई कि आप किस स्टेज में हैं, एंड ही विल डिटरमिन कि आपको क्या करना है। एक्सरसाइज करके ठीक करना है, या तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाना है, आपको ओबेसिटी कम करना है, या तो ऑपरेशन करना है। अगेन ये सब हम लोग कर रहे हैं पैरालिसिस बचाने के लिए, लिम्ब डेफिसिट मतलब कमजोरी से बचने के लिए। आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका पूरा पैरालाइज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द इंजरी। आपका ब्लैडर बाउल मतलब आपका टट्टी पेशाब में तकलीफ हो सकता है, और ये लाइफस्टाइल का स्टिग्मा है। एक बार हो गए तो पूरा रिकवरी नहीं होता है। हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है कि पहले ही कंट्रोल करें, है ना, पहले उसको सीमित रखें। स्पॉन्डिलाइटिस है तो न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन इज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली दे विल रेफर, है ना, वो लोग रेफर करेंगे। बट यदि आपको पता चलेगा कि सिर्फ स्पाइन का प्रॉब्लम और कोई न्यूरो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जो न्यूरो स्पाइन स्पेशलिस्ट है उसके पास आइए। एग्जामिन करना जरूरी है, और हो सके तो इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई करना पड़ेगा। that is you are saying that spondylitis is also a common cause for the Spondylitis? No, I don't say that. Again, depending on the kind of a spondylitis, there are many degenerative spine, there are many rheumatological problem, as well as some kind of genetic problem in which there is hypertrophy of the bones, in which they gradually compress the blood vessels in the neck and all. Okay, that can cause stroke. Okay. Not hospital में है हमारे पास जितने भी पेशेंट इमरजेंसी पे आते हैं, वी ट्रीट देम एज ए स्वास्थ्य पेशेंट। बट क्वेश्चन है, कौन कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है ये स्ट्रोक, एक नंबर, और नंबर 2 है स्ट्रोक और जो अटैक है, तो उनमें अंतर क्या है? देखिए, स्ट्रोक आजकल तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, किडनी स्ट्रोक, सबका सभी ऑर्गन का स्ट्रोक है। इवन लिवर का भी ब्लड सप्लाई बंद हो सकता है, उसको लिवर स्ट्रोक भी बोलते हैं। हम लोग अभी तो ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। पर ब्रेन स्ट्रोक हो गए तो मेंटली आपका जो सेंसोरियम है आपको डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप हार्ट में असर आने लगता है,
डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द स्ट्रोक, हार्ट का जो ऑटोमेटिक डिस्फंक्शन बोलते हैं, जो करंट आना है ब्रेन से, वो सिग्नल कम होता है, फिर लंग्स कम हो जाता है, फिर एस्पिरेट, जब ड्राउजी होने लगता है तो फिर जो हम लोग का जो सलाइवा में बैक्टीरिया रहता है वो लंग्स में चले जाता है, निमोनिया होने लगता है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कि एक ऑर्गन को एक अलग से देखे, यू हैव टू लुक एट द पेशेंट इन टोटलिटी। What is the difference between plaque and block? Block और ब्लॉक एंड प्लाक में देखिए स्ट्रोक अगेन, अब पॉजिटिव ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक, जो ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक है अब ये छोड़ देते हैं, हिमोरेजिक वाला स्ट्रोक अभी छोड़ देते हैं, ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक कैसे होता है, हार्ट से शुरू होता है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ टोज, ओके, हम लोग को लेग से शुरू होता है। सपोज पेशेंट बेड रिडन है, एक महीने तो बेड मतलब एक हफ्ते तक आईसीयू में पड़ा हुआ या घर में पैरालाइज होकर पड़ा हुआ, तो हम लोग को लेग के बड़े बड़े वेन्स में ब्लड जम सकता है, दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। वो सडनली आप मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज मालिश वालिश करेंगे, वो डिस्लॉज होकर सीधा हार्ट में जाके, हार्ट से होके फिर ब्रेन के जो कैरेट में जाके ब्लॉक हो सकता है। सो स्ट्रोक पैर से शुरू हो सकता है। सेकेंड इज हार्ट इज द वेरी 50% ऑफ कॉजेज फॉर इस्केमिक स्ट्रोक इज फ्रॉम द हार्ट। हार्ट में क्या होता है कि एज के साथ या किसी का रिदम का बीमारी है तो ओके, हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छा नहीं रहता, वहां पे छोटे छोटे माइक्रो एम्बुलाई फॉर्म होता है, छोटे छोटे क्लॉट्स फॉर्म होता है हार्ट के अंदर, चैम्बर्स के, ये 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें, फिर वो अचानक डिस्लॉज होके ब्रेन में चले जाता है। सो दैट्स कॉल्ड ओके कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। फिर जैसे हार्ट से निकलते बड़े बड़े ब्लड वेसल्स, वहां पे प्लाक हो सकती है, जैसे आपने बोला, जैसे जिसका यदि कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वहां पे जाके धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और ओवर टाइम स्टेनोसिस हो जाता है, और स्टेनोसिस होते होते अचानक ब्लॉक हो जाता है, फिर ब्लॉकेज हो जाता है, फिर ब्लड वेसल्स नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग स्ट्रोक का, इट शुड बी फ्रॉम द toe to the head, everything. It is only for the heart palpitation. It is only for the cardiac thing. Cardiac, it's not for the brain. सर जस्ट मैं स्ट्रोक को लेके भी आ रहा हूँ, फिर पे यू डू लॉट ऑफ स्पाइन सर्जरीज, व्हाट इज सक्सेस ऑफ स्पाइन सर्जरी अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो? स्पाइन में क्या है सर जो? See, spine, we are not God, we cannot cure spinal conditions, we can control it, we can help the patient to cope with the condition. यदि सर्जरी, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, हम सर्जरी करेंगे तो आई कैन अश्योर यू 80% ऑफ द रिलीफ, नॉट 100%, द रेस्ट 20% शुड बी अ माइंड गेम। किसी का मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए, साथ में एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एंड डूज एंड डोंट्स, जैसे भारी सामान अचानक नहीं उठाना, कैसे बैठना, कैसे उठना है, कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज करना, ये इंपॉर्टेंट है। सो स्पाइनल पैथोलॉजी इज नॉट क्यूरेबल, इट्स कंट्रोलेबल। সংখ্যক রোগী পার মান্থ বা পার ইয়ার মানে এই ধরনের, অর্থাৎ নিউরোর ক্ষেত্রেই বলুন বা হার্টের ক্ষেত্রেই বলুন, স্ট্রোকের ক্ষেত্রেই বলুন, এই ধরনের বা কত সংখ্যক রোগীকে আপনারা পাচ্ছেন মানে অ্যাভারেজ From this event, No, from মানে সব দিক থেকে। রাজ্যে যদি বলি রাজ্যে, আচ্ছা, অ্যাজ এ হোল স্যার হাউ মেনি পেশেন্টস উই রিসিভ অ্যাজ এ ইন ক্যালকাটা? আপনি কি কলকাতার বলতে সামগ্রিক, না আমি আমার ইউনিটের কথা বলবো? স্টেটের কথা বলা। দেখুন স্টেটের কথা বলতে গেলে যদি আপনি জাস্ট থিওরিটিক্যালি বলেন যে ডায়াবেটিস রোগ যে রয়েছে সেটা এই মুহূর্তে 10-এ 3, 10 জনকে যদি আপনি স্টাডি করেন 3 জনকার ডায়াবেটিক্স, রিলেটেড টু হার্ট ডিজিজ 10 জনকার 5 জনের মধ্যে, স্ট্রোক সেখানে ধরুন আপনি যদি 10 জনকে স্টাডি করেন তাহলে আপনি অন্তত আপনি 20 জনকে স্টাডি করেন, আপনি দুটো লোকের নিউরো ডিজিজ পাবেন 2 থেকে 3 জন। সো ইটস কোয়াইট অ্যালার্মিং নাম্বার, এই নাম্বারটা বাড়ছে, আগে এত ছিল না। এই যে স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট বা বিভিন্ন শহরে যে আমাদের নিউরোর চিকিৎসা একটা বেড়ে গেছে, এর একটাই কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই নম্বরের রোগীরা প্রচুর বাড়ছে। ডায়াবেটিক্স একটা কারণ, আর স্ট্রেস এই একটা কারণ। বিকজ আমাদের ওইখানে যে ধরনের পেশেন্ট দেখছি, আগে একটা মিথ ছিল যে স্ট্রোক খুব বয়স্ক লোকেদের হয়, কিন্তু এখন সেটা 35 to 40 থেকেও শুরু হচ্ছে। আমি স্ট্রোকের কথা বলছি না, আমি নিউরো ডিজিজের কথা বলছি। কারণ অনেকগুলো উনি বললেন, একটা জেনেটিক কারণ হতে পারে, একটা হচ্ছে যে জেস্টার পশ্চার যেভাবে আমরা লাইফ লিড করছি, ল্যাক অফ এক্সারসাইজ, সেটার স্পাইনে এফেক্ট ফেলছে। আর ফাইনালি আমি মনে করি যে আমরা সবাই যে প্রফেশনে আছি, স্ট্রেস একটা মারাত্মক জিনিস যেটা সবকিছু ডাউন করছে। আরেকটা স্যার আমি আপনার কাছে আসবো, I'll just quote the incidence of stroke, okay, neurostroke in India, published in the Indian journals of this neurology and all. The incidence is around 170 people for 1 lakh population. It's quite high. It's very, very high. That's it. এবার যেটা বিষয় সেটা কি দৈহিক পরিশ্রম। খুব ভ্যালিড কোশ্চেন স্যার, কত কোশ্চেন? Hard work will not cause stroke.
that's a myth. Actually, that's a myth. Again, स्ट्रोक के लिए बहुत कारण हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर एज ऑफ 35 पीपल से एटलीस्ट 45 years, but we say 35 years. Regular follow, okay, regular physician, okay, treatment evaluation by the physician is must. At least once in a year, blood test, routine tests वो करना चाहिए. Blood pressure कंट्रोल में रखना चाहिए. So, but hard work लोग जो चास करते हैं उसको स्ट्रोक होता है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ सर, मैं आई थिंक क्वेश्चन कैन बी फ्रेज इन दिस वे. फिजिकली एक्टिव लोग की physically active लोग, those are very physically active, thus they more prone towards stroke compared to those are less inactive. Sedentary. See, now that I don't have the data right now, definitely sedentary lifestyle is not good, sir. ठीक है, अपना That can lead to cardiovascular disease or the neuro disease. So, পার্সেন্টেজটা কাদের বেশি, মেয়েদের স্ট্রোকের সম্ভাবনাটা বেশি না ছেলেদের? जेंडर में क्या कोई डिफरेंस सर? नहीं, जेंडर में अभी ऐसा फर्क नहीं है, बट हाँ, वी गेट मोर, okay, in our literature we have more male incidents because I think they approach the hospital more. They are more prone to all this substance abuse. So and definitely yes, male. According to our literature, male has more incidents of neuro problem. That has to start from the school. School से start करना पड़ेगा. Avoid obesity. Avoid junk food. These are and sedentary lifestyle. At least 30 minutes to 1 hour of activities in the playground is very important. All these are vicious cycle. Okay? Obesity हो गया, sedentary lifestyle हो गया, खेलकूद करना बंद कर लेता है, और आजकल मोबाइल का सब लोग मोबाइल में रहते हैं, तो these all contribute to the long term incidence of higher stroke. So the precautions start from the school. There must be awareness regarding activities, avoid obesity, kind of food you eat at home. Thereafter, again, 30 minutes of exercise in a day or walking, brisk activity, simple walking, brisk activity is very important. I mean, जिम हो गए हैं फिर भी, but the factor stress we didn't calculate. आप सुनते तो सडनली जिम में लोग कोलैप्स होके मर गए, आजकल बहुत कॉमन हो गया. Again, there is no one factor. Again, what we know is blood pressure, sugar, sedentary lifestyle, stress. These are the most common factors which has to be taken care of. Rest is, I think, it's more of a genetic thing and. জরুরি है free hand exercise. Yes. At least 30 minutes of brisk activity is very important. লাস্ট কোশ্চেন যেটা যে জন্য আমাদের কর্মসূচি স্ট্রোক সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেসটা একটা, যার পারপাস আমরা আছি। আমরা এটা চাইছি যে কলকাতায় যে আমরা স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট করেছি তার প্রচারটা হোক এবং সব জায়গায় লোকেরা শিক্ষিত হোক যে তার প্রিভেন্টিভ স্টেপ কি হবে, ফার্স্টলি। সেকেন্ডলি, যদি লং টার্মে একটা কথা বলেন, তো আমরা এখান থেকে অনেক পেশেন্ট পাই যারা বর্ধমান থেকে কলকাতায় যায়, ট্রিটমেন্ট করায়, সার্জারি হয়, পরবর্তীকালে একটা ফলো আপও সেখানে করায়। তো আজ না হলো দাঁড়িয়ে হয়তো আমি 3 মাস পরে যখন আবার এখানে ফিরে আসবো, ডেফিনেটলি আমরা চাইবো অন্তত বর্ধমানের জন্য একটা আমরা ইউনিট বা একটা আমরা ওপিডি সেন্টার করি, অ্যাটলিস্ট যাতে ফলো আপে পেশেন্ট গুলোকে আর না কলকাতা যেতে হয়, তারা যেন এখানে থাকতে পারে। কারণ আমরা চাই না যে একটা লোক 2 বার করে যাবে, বিকজ ইটস ভেরি টাইম কনজিউমিং। একটা লোকের এখান থেকে বর্ধমান থেকে কলকাতা যাওয়া, 3 ঘন্টা যাওয়া, 3 ঘন্টা আসা, তার ফলো আপ এখানে হোক। ওয়েন এভার এমার্জেন্সি রিকোয়ার্ড, আর যদি বর্ধমানে না হয়, ডেফিনেটলি দেয়। আর বর্তমানে কি হচ্ছে এটা? দেখুন, হোপফুলি এই মুহূর্তে আমি আপনাকে ডেডলাইন দেবো না, তবে আমাদের ফিউচার রয়েছে যে নেক্সট ইয়ারে আমরা এখানে একটা কোনো ক্লিনিক করি, তাহলে অন্তত এইটা আমাদের একটু আটকাতে পারবো আমরা। আর একটা জিনিস নিয়ে বলবো, যে জিনিসটা নিয়ে স্যার এখানে আসা, যে ব্রেন টিউমার সম্বন্ধে আপনারা অনেক কিছু শোনেন। ব্রেন টিউমার এবং তার দুটো অ্যাঙ্গেল আপনারা অনেক শুনে থাকেন, ক্লিপিং এবং কয়েলিং। যে ভদ্রলোক আজকে আমাদের মধ্যে আসতে পারেননি, হি ইজ দ্য মেইন পার্সন ফর ক্লিপিং, বাট স্যার রয়েছেন এখানে কয়েলিং, হ্যাঁ, অ্যান্ড্রুজম। এই দুটো ব্যাপার নিয়ে আপনারা একটু জেনে যান, শুনে যান। স্যার, ব্রেন টিউমার এন্ড হোয়াট ইজ হিজ রোল, আর আমরা কিভাবে ট্রিট করতে পারি, হাউ ডু উই অপারেট देम? अगेन सी, ब्रेन ट्यूमर तो न्यूरॉन, एक चीज मैं कॉमन पीपल को बोलना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर इज ऑलवेज नॉट बैड. 2 टाइप का ट्यूमर होता है ब्रेन में, एक बिनाइन बोलते हैं, एक मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट माने कैंसर, बिनाइन माने क्यूरेबल. ओके, क्यूरेबल में बहुत सारे ट्यूमर हैं, अराउंड 80% ऑफ ट्यूमर आर बिनाइन, जो ऑपरेशन के अंदर क्योर हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. और मैलिग्नेंट माने कैंसर जिसका लॉन्जिटिविटी आयु डिपेंड करता है कि पैथोलॉजी में क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग होता है. देखिए, डेफिनेटली इसका लक्षण भी हो सकता है स्ट्रोक जैसा ही हो, स्पेशली हेडेक से लेके विजन प्रॉब्लम से लेके, मिर्गी से लेके, खिचड़ी से लेके,
या पैरालाइसिस, ये सब लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर, बट दे आर लिटिल स्लोली प्रेजेंटिंग. The tumors present slowly over a period of months or years, whereas stroke comes in the flash of a second. Iska treatment is very vast, but again I can assure the public that most of the brain tumors are curable. मैं cure की बात कर रहा हूँ. Do not be scared of the term brain tumor. और ऐसा नहीं कि सभी केसेस में आजकल ऑपरेशन ही करना पड़ता है. कोई डिस्क्रीट केसेस में हम लोग आजकल फोकस्ड रेडिएशन जैसे गामा नाइफ थेरेपी से भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल डिपेंड ऑन द imaging finding and presentation of the patient. जो आप बात कर रहे हैं क्लिपिंग और कॉइलिंग, एनेरिज्म मतलब ब्लड वेसल्स का बीमारी. एक ब्लड वेसल्स है, वो ऊपर जाके बलून टाइप का फूल जाता है. जो वॉल होता है 3 लेयर्स ऑफ आगे वॉल होता है एक आर्टरी का, वो किसी कारण से कमजोर हो जाता है और वो बलून टाइप का फूल जाता है. और जस्ट इमेजिन यहाँ पे थोड़ा कटने से कितना ब्लीडिंग होता है. वो ब्रेन के अंदर एक बार थोड़ा सा भी फट गया तो कितना ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है. वो हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं. एंड अगेन दीज आर ओके. इसका जो ट्रीटमेंट है डिपेंड्स ऑन द इनिशियल प्रेजेंटेशन, मतलब उसका भी ग्रेडिंग होता है. एंड 10% ऑफ पीपल डाई एट द स्पॉट बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल. ये एनेरिज्म ऐसा है, ये बहुत खतरनाक जिनिस है. अराउंड 50% पेशेंट्स कैन बी क्योर एंड 30 to 40% पेशेंट्स विद ट्रीटमेंट दे लिव विद सम मॉर्बिडिटी. कोई पैरालिसिस या कोई मतलब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ रह सकता है. बट 50% कैन बी क्योरेबल. 10% डाई before at the spot or before reaching the hospital. Aneurysm. इसका 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन. या तो हम लोग छोटा माइक्रो सर्जरी करके क्लिपिंग कर देते हैं ताकि उसको वो फिर से ब्लीडिंग ना हो. या तो आजकल का इफ द टाइम परमिट्स एंड इफ द एनाटॉमी परमिट्स, सभी में कॉइलिंग नहीं कर सकते. उसमें जैसे हार्ट का एंजियोप्लास्टी करते वैसे ही हम लोग कैथेटर लगा के वहां पे कॉइलिंग कर सकते हैं ब्रेन में विदाउट ऑपरेशन. अगेन दीज आर ऑल डन इन हायर सेंटर्स. So that's why, like any neuro problem, आप definitely first aid तो लेंगे, and at the discretion of the primarily treating doctor, please go to a higher neuro center. Evolution, we are discussing the management that each patient, each family should be treated very individually. All patients don't have that capacity. What you're saying, unfortunately, we don't have those kind of insurance policy in India as of yet. That's why government has many social schemes, and still it's not reaching the last mile. And we will treat. I assure you, as a doctor, as a neurosurgeon in Manipal, Mukunda ICU Center, I treat my patient as a family unit individually. I go to the management. I try to tell them to please help with the costing. I do my best for the benefit of the patient, because for us, first to treat the pathology is more important than any monetary gains. So regarding the premium hospitals, high-end hospitals do have the running cost. They will charge extra. But I think if you talk to the doctor, treating physician, your surgeon, and the management, we can always help. অলওয়েজ একটা রাস্তা খোলা থাকে, অসুবিধা তেমন থাকে না. কারণ আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাই যে অন্তত বর্ধমান জেলা থেকে কিছু না হলেও প্রত্যেক মাসে 500 পেশেন্ট হয়তো সাউথ ইন্ডিয়াকে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে. সেটা আরো বেশি কস্টলি কম্পেয়ার টু কলকাতা থেকে বেটার. তো সেই যেটাকে ড্রেনেজটাকে যদি আমরা এখানে আটকাতে পারি, definitely help us. And most of the things we are trying to bring into a package. Suppose you do a spine surgery and we give you a package. We try to limit ourselves within the package and not let the cost escalate. That's very important. And that assurance can be only after 1-to-1 meeting, knowing the pathology कि ये treatable है, नहीं treatable है ना? So that's how we can help. Blanketly we cannot say कि it's very costly. ফিনান্স নিয়ে খুব একটা বেশি কারোর অসুবিধা এখন অবধি, টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি প্রেসের সামনে বলছি আমাদের মানিপালিটা কারোর হয়নি. বিকজ যারা বিভিন্ন সরকারি স্কিম নিয়ে আসেন, এমার্জেন্সি বেসিসে যেটাই এলে সেটা হসপিটালের পলিসি অনুযায়ী তাকে ট্রিট করাটা আমাদের মধ্যেই পড়ে. উইল ডু সেটা সেটা মুকুন্দপুর বলে নয়, ইচ অ্যান্ড এভরি হসপিটাল কলকাতা এমার্জেন্সিকে অলওয়েজ ট্রিট করে.